नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आरसीसी के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सेवन्थ चैप्टर कॉलम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द अपर लिमिट ऑन परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम हैज़ बीन केप्ट इन माइंड टू सर्व विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो टू कैटर इजी प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इन कॉलम। ठीक है, अपर लिमिट ऑन परसेंटेज longitudinal reinforcement in an RCC column has been kept in mind to cater easy placement and compaction of concrete in column। ठीक है, मिनिमम reinforcement कितना होता है 0.8% एंड मैक्सिमम reinforcement 6% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, when the when the both ends of column are restrained by beams, the unsupported length should not exceed 60 भी। ठीक है, according to IS 456/2000 clause 25.3.1 said that the unsupported length between end restraints shall not exceed 60 p if b क्या है, least lateral dimension of column। if one end of column is unrestrained, its unsupported length कितना हो जाएगा 100 p square by d। ठीक है, into how many categories are column categorized, कितने categories में column categorized होता है, दो कैटेगरीज में। ठीक है, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम, लैम्डा लेस देन 12 शॉर्ट कॉलम, लैम्डा ग्रेटर देन 12 लॉन्ग कॉलम। ठीक है, लैम्डा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट कॉलम डायमेंशन। एज पर SP 16/1980 फॉर कंटिन्यूस स्पैन और cantilevers, the value read from the chart are to be modified in proportion to the basic values of span to effective depth ratio। The multiplying factor for continuous span 1.3। According to SP 16/1980, the multiplying factor for this purpose as follows: continuous span के लिए 1.3, cantilever के लिए 0.35। ठीक है, what is the primary function of transverse reinforcement in reinforced concrete column, क्या होगा, reduce deflection। ठीक है, reinforced concrete column are mainly subjected to relatively greater axial force and bending moment। The shear is usually very small। The primary function of transverse reinforcement in reinforced concrete column is reduce deflection। ठीक है, द मेन रोल ऑफ ट्रांसफर reinforcement in reinforced concrete column is not to transfer the shear stress as it is mainly in the beams, but it is prevention buckling of longitudinal bar and transfer of tensile stress। ठीक है, जो मेन रोल होता है ट्रांसफर reinforcement का reinforced concrete column में, वो ये नहीं होता कि shear stress को ट्रांसफर करें, क्योंकि वो मेनली बीम्स में अगर होता है shear stress, पर जो ट्रांसफर reinforcement का मेन रोल होता है वो बकलिंग लॉन्गिट्यूडनल बार के बकलिंग को प्रिवेंट करना होता है और टेंसाइल स्ट्रेस को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ओपन एंड ऑफ लेटरल टाइज इन कॉलम शुड बी बेंड बाय 135 डिग्री। ठीक है, द ओपन एंड ऑफ लेटरल टाइज इन कॉलम शुड बी बेंट एट 135 डिग्री एंगल। दिस बेंडिंग हेल्प इंश्योर प्रॉपर एंकरेज एंड confinement of the longitudinal bar within the column। ठीक है, the bend ends provide better resistance against lateral force and help prevent the longitudinal bar from slipping। जो bend end है वो better resistance provide करेगा against lateral force, और किस चीज़ में हेल्प करेगा, टू प्रिवेंट द longitudinal bar from slipping, लॉन्गिट्यूडनल बार को स्लिप होने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, पिच ऑफ लेटरल बार कितना होगा, मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16.5 या कि 300 mm से जो भी मिनिमम होगा वो होगा पिच। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन आरसीसी कॉलम शैल भी कितना होगा, 4 इन रेक्टेंगुलर कॉलम एंड 6 इन सर्कुलर कॉलम। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर reinforcement फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम 4, फॉर सर्कुलर कॉलम 6, फॉर ऑक्टागोनल कॉलम 8। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार प्रोवाइडेड इन आरसीसी कॉलम कितना होगा, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए 4, सर्कुलर कॉलम के लिए 6, ऑक्टागोनल के लिए 8। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एज पर IS 456/2000 स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm। ठीक है, तो एज पर IS 456/2000 clause 26.5.3.1 a reinforced concrete column having a helical reinforcement shall have at least 6 bar of longitudinal reinforcement within helical reinforcement। spacing of longitudinal bar measured along the periphery of the column should not exceed 300 mm। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। The lateral ties in an RCC column provide resistance primarily against lateral torsion buckling। ठीक है, फंक्शन ऑफ लेटरल टाइज क्या होता है आरसीसी कॉलम में, शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है, बकलिंग को प्रिवेंट करता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लेटरल टॉर्सन बकलिंग। ठीक है, विच IS कोड प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम। तो IS 456/2000। ठीक है, IS 456/2000 कोड प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम। IS 383 IS 383 coarse and fine aggregate 1343 pre-stress concrete। ठीक है, in axially loaded RCC column, what is the purpose of providing large area of steel reinforcement, इसलिए प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द कॉलम लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है,
कॉलम लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन एनी कॉलम दैट हैज़ अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया देन द रिक्वायर्ड to support the load the minimum percentage of steel shall be used upon the area of concrete required to resist the direct stress and not upon actual area, ठीक है। किसी भी कॉलम में that has larger cross sectional area than that required to support the load the minimum percentage of steel कितना होना चाहिए, किस पे बेस्ड होना चाहिए, upon the area of concrete required to resist the direct stress and not upon actual area, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हो वो बेस होना चाहिए एरिया ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द डायरेक्ट स्ट्रेस, एक्चुअल एरिया पे बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई एस एज पर IS 3920 मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 200 mm, ठीक है। द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 200 mm। हाउएवर इन फ्रेम्स विच हैव बीम्स विद सेंटर टू सेंटर स्पैन एक्सीडिंग 5 mm और कॉलम्स ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ एक्सीडिंग 4 mm द शॉर्टेस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम शैल नॉट बी लेस देन 3 mm, ठीक है। जो मिनिमम डायमेंशन है मेंबर का वो 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। हाउएवर फ्रेम्स में जिसमें बीम्स है विद सेंटर टू सेंटर स्पैन जिसकी 5 mm से ज़्यादा है, या कि कॉलम्स जिसके अनसपोर्टेड लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, उसमें जो शॉर्टेस्ट डायमेंशन होगा कॉलम का वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव लेंथ रेशियो और अनसपोर्टेड रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ टू बी कंसीडर फॉर सोई कॉलम कितना होना चाहिए, 1.2, ठीक है। When relative lateral displacement of the end is not presented or considered to sway column, then L effective by L should not be less than 2, ठीक है, वो should not be less than 1.2। Which of the following is the vertical member carrying axial load, तो column, ठीक है। कॉलम इज वर्टिकल मेंबर कैरिंग प्राइमरली एक्सियल लोड बट जनरली सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड मूवमेंट। स्लैब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट एलिमेंट कैरिंग लेटरल लोड्स। बीम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर कैरिंग लेटरल लोड्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू हेलिकल रीइंफोर्समेंट इज अबाउट कितना, 1.05% मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ सिमिलर मेंबर विथ लेटरल टाइज, ठीक है। एज पर IS 4562,000 क्लॉज 39.4 the code permits larger load in compression member with helical reinforcement because column with helical reinforcement have greater ductility or toughness when they loaded concentrically. As per the code, the strength of compression member with helical reinforcement satisfying the requirement given below shall be taken as 1.05 times the strength of similar member with lateral ties, ठीक है। कोड परमिट करता है larger load in compression member with helical reinforcement, ठीक है, because column with helical reinforcement have great ductility or toughness when they are loaded concentrically। कोड के अनुसार the strength of compression member with helical reinforcement वो क्या satisfy करना चाहिए, the requirement as per the code the strength of compression member with helical reinforcement satisfying the requirement given below कितना लेना चाहिए उसको, 1.05 times the strength of similar member with lateral ties, ठीक है। ratio of volume of helical reinforcement to the volume of core shall not be less than 0.36 AG upon AC minus 1 FCK upon F by AG क्या है, gross area of section, AC क्या है, area of core of helically reinforced column, ठीक है। The slenderness ratio of a compression member in the context of Rankine's formula is defined as effective length upon least radius of gyration, ठीक है। Which of the following statement is not correct? So the number of longitudinal bar provided in a circular column should not be less than 4, ये गलत है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 4 फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, 6 फॉर सर्कुलर कॉलम, ठीक है, एंड 8 फॉर ऑक्टागोनल कॉलम, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर लॉन्गिट्यूडनल reinforcement shall not be less than 40.8% and not more than 6% of क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, ठीक है। यह है डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर कॉलम्स। मिनिमम डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए 12 mm। Spacing of longitudinal bar measured along the periphery of the column should not exceed 300 mm। Nominal cover for longitudinal bar should not be less than 40 mm or less than the diameter of such bar, ठीक है। नॉमिनल कवर किससे कम नहीं होना चाहिए, 5 और 40 mm, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, RCC कंप्रेशन मेंबर में भी कंसीडर एज शॉर्ट कॉलम when both the slenderness ratio LEX upon D and LEY by B are less than 12, ठीक है। LEX क्या है, इफेक्टिव लेंथ विथ रिस्पेक्ट एक्सिस टू द मेजर एक्सिस। D क्या है, डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू मेजर। LEY क्या है, इफेक्टिव लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस टू द माइनर एक्सिस। स्मॉल b क्या है, विड्थ ऑफ मेंबर। अकॉर्डिंग टू IS 4562,000 द पिच ऑफ द lateral ties should not exceed least lateral dimension of the compression member 16 times the smallest dia 300 है, ये अपन पीछे भी देखा है अभी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द वे द लिमिट
The limit of percentage of longitudinal reinforcement in column where reinforcing bar from the column below are overlapped with those in the column under construction, उसको कितना दिया जाएगा 0.8 एंड 4%, ठीक है। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल reinforcement कॉलम में 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल reinforcement 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, इट कैन बी reduced to 4% एट द लेफ्ट स्प्लाइस लोकेशन फॉर बेटर प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, लेकिन इसको reduce किया जा सकता है 4% ऑफ द 4% तक reduce किया जा सकता है, कहाँ पे, लेफ्ट स्प्लाइस लोकेशन पे, फॉर बेटर प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन, ठीक है। नोट देखते हैं क्या लिखा है। मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm, मिनिमम नंबर ऑफ बार रेक्टेंगुलर के 4, सर्कुलर के 6, ऑक्टागोनल के लिए 8, ठीक है। एज पर IS 456/2000 मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन रेक्टेंगुलर कॉलम शुड बी 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 बार्स ऑफ 12 mm, ठीक है। तो ग्रेटर ऑफ ए एंड बी जो भी मैक्सिमम होगा, ये अभी अपन पीछे देख के आए हैं। For longitudinal reinforcement bar as per IS 456/2000 the cross section area shall not be more than, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्रॉस सेक्शन, 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया है। एज पर IS 456/2000 द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.8% एंड 12 mm ऑफ द 0.8% ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम एंड द डायमीटर ऑफ दिस बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm, ठीक है। एज पर IS 456/2000 reinforcement in column should not be less than or more than 0.8% and not more than 6% of cross sectional area, ठीक है। As per IS 456/2000 reinforcement cement compression member shall be considered as short column when the slenderness ratio are less than, किससे less than 12 से, ठीक है। 579 in the context reinforced brick bar slenderness ratio refers to the ratio of height to breadth wall, ठीक है। लोड बियरिंग बॉल के लिए लेमडा कितना होगा 27, नॉन लोड बियरिंग बॉल के लिए लेमडा 30, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। Lateral ties in RC column are provided to resist buckling of longitudinal steel bar. Main function of lateral reinforcement in RC column are it restrain the splice bar and hence prevent their slip. It resists the shear force and hence contribute avoiding shear failure. It prevent longitudinal reinforced bar from buckling the concrete core to provide sufficient ductility, ठीक है। ये मेन फंक्शन lateral reinforcement bar का in RC columns. The diameter of longitudinal bar in a column should not be less than 12 mm, ठीक है। इसके बारे में अपन पीछे देखे ही हैं, ठीक है। Reinforcement column having helical reinforcement shall have at least 6 bars of longitudinal reinforcement within helical reinforcement, ये भी अपन पीछे देख के आए अभी। Circular and octagonal column are mostly of column with helical reinforcement type, ठीक है। Circular and octagonal column are often reinforcement with helical reinforcement column with helical reinforcement after increased ductility and strength, making them particularly suitable for structure in seismic zone or those subjected to significant lateral force, ठीक है। Circular और octagonal column often reinforce किया जाता है with helical reinforcement column, ठीक है, after increased ductility and strength, making them particularly suitable for structure in seismic zone और दो सब्जेक्टेड टू सिग्निफिकेंट लेटरल फोर्स, ठीक है। उसके लिए सुटेबल हो जाता है, सिस्मिक जोन के लिए सुटेबल हो जाता है स्ट्रक्चर, और या कि उस स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल हो जाता है जिसमें लेटरल फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक है। इन एक्सियली लोडेड कॉलम द क्लियर कवर फॉर टाइज शुड नॉट बी लेस देन 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। In axially loaded column, the clear cover for ties should not be less than 25 mm. Lateral ties diameter is governed by criteria of stiffness, not by strength, ठीक है। lateral ties में जो diameter govern होता है किस criteria से govern होता है, stiffness से, ना कि strength से, ठीक है। Therefore, it is independent of grade of steel. 5 should be greater or equal to 5/4 and 6 mm, जो भी ज़्यादा होगा इसमें से। Spacing least lateral dimension 16, 5, 300 mm, whichever is less. Helical reinforcement in an axially loaded RCC column primarily enhance load carrying capacity, ठीक है। Helical reinforcement in axially loaded RCC column primarily enhance ductility. The helical reinforcement, in addition to rendering support to longitudinal bar against buckling due to lateral load and displacement, also act to confine the concrete within it in the form of core, thereby increasing the load capacity of shorter column provided helix form, ठीक है। Helical reinforcement axially loaded column में primarily ductility enhance करता है, और helical reinforcement जो होता है सपोर्ट को रेंडर करने के साथ साथ अगेंस्ट सपोर्ट को अगेंस्ट बकलिंग रेंडर करने के साथ साथ और साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट एक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्ट करता है टू कन्फाइन द कंक्रीट विथिन द फॉर्म ऑफ कोर बाय इंक्रीजिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम, ठीक है।
द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज फॉर एक्सिली लोडेड आरसीसी कॉलम एज पर IS 456/2000 कितना होगा? M20, ठीक है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर टू बी यूज फॉर एक्सिली लोडेड आरसीसी कॉलम M20 एज पर IS 456/2000 कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनल reinforcement. मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन कॉलम शैल बी 4 इन रेक्टेंगुलर कॉलम, 6 इन सर्कुलर कॉलम, ठीक है, एंड 8 इन ऑक्टागोनल कॉलम, ठीक है। बाकी सब चीज़ें देखें। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्पेसिंग जो है लॉन्गिट्यूडनल बार की अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ कॉलम वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर longitudinal reinforcement, a reinforcement concrete column having helical reinforcement shall have at least 6 bars, ठीक है। अभी अपन पीछे देख के आए हैं। विच टाइप ऑफ कॉलम फेल ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बकलिंग एंड डायरेक्ट कंप्रेसिव की वजह से कौन सा कॉलम फेल हो जाता है? मीडियम कॉलम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम देखते हैं। शॉर्ट कॉलम हैव लीस्ट lateral dimension or their slenderness ratio is less than 12. Short column do not buckle but failed by yielding and hence can be subjected to maximum permissible compressive stress, ठीक है। Long column have very large length as compared to their least lateral dimension and their slenderness ratio is greater than 12. Such column fail mainly by buckling and the effect of direct compressive stress is almost negligible, ठीक है। मीडियम कॉलम जो फेल होता है ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बकलिंग एंड डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। विच एंड कंडीशन रिजल्ट इन इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाफ फॉर कॉलम? कौन सा? फिक्स्ड एंड, ठीक है। L/2 हो जाएगा बोथ एंड अगर फिक्स्ड है तो, ठीक है। हिंज है तो L, इफेक्टिव लेंथ 1 इन फिक्स्ड 1 इन हिंज है तो L/√2, इफेक्टिव लेंथ 1 इन फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री तो 2L, ठीक है। Expression for effective length of a compression member can be obtained. L is equal to KL where K indicates dash where L is the unsupported length of compression member, ठीक है। तो K क्या इंडिकेट करता है? इफेक्टिव लेंथ रेशियो, ठीक है। फॉर अ कॉलम विद डायमीटर 180 mm एंड द reinforcing bar 12 mm, मिनिमम पॉसिबल क्लियर कवर कितना होगा? 25 mm, ठीक है। Expression for effective length LE of a compression member can be obtained. L is equal to KL. Here K indicates effective length ratio. L क्या है? unsupported length of compression member, ठीक है। मिनिमम कवर ऑफ कॉलम कितना होगा? 40 mm और बार डायमीटर, एंड रेड्यूस क्लियर कवर कितना होगा? 25 mm इज परमिटेड इन स्मॉल साइज कॉलम के केस में जिसका डाया जो डेप्थ है लेस और इक्वल टू 200 mm एंड हुज रीइंफोर्सिंग बार शुड नॉट एक्सीड 12 mm, उस केस में 25 mm, ठीक है। फॉर कॉलम विद डाया 180 mm एंड रीइंफोर्सिंग बार 12 mm, तो उस केस में मिनिमम क्लियर कवर 25 mm होगा, ठीक है। एज पर IS 456/2000 splices in flexural member should not be at section where bending moment is more than 50%, या कि half of the bars of the movement of resistance, more than 50% of the movement of resistance and not more than half of the bars shall be spliced at section, ठीक है। as per IS 456/2000 clause 26.2.5 splices in flexural member should not be at section where bending moment is more than 50% of the movement of resistance and not more than half of the bars shall be spliced section, ठीक है। तो जो स्प्लाइसेस है फ्लेक्सिबल मेंबर में वो उस सेक्शन में नहीं होना चाहिए जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जो है वो 50% ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, और एंड शुड नॉट बी मोर देन एंड नॉट मोर देन हाफ ऑफ द बार शैल बी स्प्लाइज एट अ सेक्शन, और हाफ ऑफ द बार से ज़्यादा जो स्प्लाइसेस हैं वो स्प्लाइज नहीं होना चाहिए सेक्शन पे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार टू बी प्रोवाइडेड इन 230 × 450 mm रेक्टेंगुलर कॉलम कितना करेंगे? 4, ठीक है। 4 इन रेक्टेंगुलर कॉलम, 6 इन सर्कुलर कॉलम। क्रॉस सेक्शनल width and depth of the column to resist direct stresses B and D. If effective length of the columm D, then according to IS 456/2000 मिनिमम एरिया कितना होगा? 0.8% होता है, ठीक है, मिनिमम एरिया। फॉर अ लॉन्ग आरसीसी कॉलम रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ग्रेटर देन 12 होगा, ठीक है। नो 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 नो, ग्रेटर देन 40 होगा इसमें, ठीक है। here for for long RCC column ratio of effective length to the least radius of gyration greater than 40, ठीक है। फॉर लॉन्ग आरसीसी कॉलम रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज ग्रेटर देन 40 फॉर मोस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम और पार्ट ऑफ देयर ऑफ हैविंग रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल ऑफ गायरेशन अब 40, अगर 40 और 12 दोनों दिया गया तो अपन 40 लगाएंगे फॉर मोस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। सेल नॉट एक्सिस्ट दोज विच रिजल्टेड इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस स्पेसिफाइड अंडर B.2.1, ठीक है। कोफिशिएंट कितना होगा? 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 60 RPM, तो ये 60 R मिनिमम, लेमडा ग्रेटर देन 40 याद रखना है, ठीक है। एज पर IS 456/2000 फॉर एनी कॉलम अनरिस्टेन्ड एट वन एंड इट्स अनसपोर्टेड लेंथ एल शुड नॉट बी लेस देन 100 B²/D, ये अपन ने पीछे भी देखा है, ठीक है। The failure of short column is due to
क्रशिंग ओनली, ठीक है। फेलियर ऑफ कॉलम किसकी वजह से होता है? डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्रशिंग की वजह से और बकलिंग स्ट्रेस की वजह से, और कंबाइंड डायरेक्ट कंप्रेसिव और बकलिंग स्ट्रेस, क्रशिंग और बकलिंग स्ट्रेस दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। इफ द कंप्रेसिव लोड ऑन द शॉर्ट कॉलम इज ग्रेजुअली इंक्रीज, स्टेज विल रीच वेयर द कॉलम विल बी वन पॉइंट ऑफ फेलियर बाय क्रशिंग। ऑल शॉर्ट कॉलम फेल ड्यू टू क्रशिंग, ठीक है। सिग्मा स्ट्रेस कितना होगा? क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्रशिंग लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हेन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन द कंप्रेशन मेंबर, इसको क्या बोलेंगे? पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल क्या है? एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है जिसका इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो डज नॉट एक्सीड 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन स्मॉल बी, ठीक है। द अदर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डी शैल नॉट एक्सीड 4 टाइम्स बी, ठीक है। डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स बी पेडेस्टल के केस में, ठीक है। ये वाला डी। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्पायरल टाई कितना होगा? मैक्सिमम स्पेसिंग स्पायरल टाई की 75 mm, ठीक है। हेलिकल रीइंफोर्समेंट शैल बी रेगुलर फॉर्मेशन, एक सेकंड। Helical reinforcement shall be regular formation with the turn of helix spaced evenly and its end shall be anchored properly by providing 1.5 extra turns of the spiral bar, ठीक है। हेलिकल reinforcement जो है वो रेगुलर फॉर्मेशन में होना चाहिए विद द टर्न्स, जो टर्न है हेलिक्स के इवनली स्पेस्ड होने चाहिए, और एंड शैल बी एंकर्ड प्रॉपर्ली, और एंड जो है प्रॉपर्ली एंकर्ड होना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग, कैसे एंकर्ड होना चाहिए? बाय प्रोवाइडिंग 1.5 एक्स्ट्रा टर्न्स ऑफ द स्पायरल बार, 1.5 एक्स्ट्रा टर्न प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड्स पे, ताकि वो प्रॉपर्ली एंकर रहे। 1.5 एक्स्ट्रा टर्न्स ऑफ द स्पायरल बार प्रोवाइडिंग, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्पायरल बार स्पायरल टाई शैल नॉट बी मोर देन 75 mm एंड नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द कोर डाया ऑफ द कॉलम। जो मैक्सिमम स्पेसिंग स्पायरल टाई बार की वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होगी, और ना ही 1/6 ऑफ द कोर डाया ऑफ द कॉलम से ज़्यादा होगा। लेस देन 25 mm, नॉट लेस देन 3 टाइम्स द डाया ऑफ द स्टील, ठीक है। और 25 mm से छोटा होना चाहिए, और ना ही 3 टाइम्स द डाया ऑफ द स्टील बार फ्रेमिंग द स्पायरल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। As per IS 456-2000, design strength of a short axial loaded compression member is expressed as 0.4 FCK AC plus 0.67 F by ASC, ठीक है। This is strength of short column 0.4 FCK AC plus 0.67 F by ASC into CR, ठीक है। यह है स्ट्रेंथ फॉर शॉर्ट कॉलम। टाइट कॉलम के लिए सी आर सिग्मा सी सी ए सी प्लस सिग्मा एस सी ए सी। स्पायरल कॉलम की 1.05 टाइम्स बढ़ा देंगे। हेलिकल रिइंफोर्समेंट के केस में सी आर होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48 भी, सी आर 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 160 आर मिनिमम। सी आर इज ऑलवेज लेस देन लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। ये किस केस में है? इफ लेमडा इज ग्रेटर और इक्वल टू 12। ये किस केस में? लेमडा ग्रेटर देन 40। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी। इफ लेमडा इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 12 देन कोफिशिएंट बताओ, तब उस केस में 48 होगा। लेमडा ग्रेटर देन 40 है तो उस केस में 160 होगा, ठीक है। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कॉलम का ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे क्वेश्चन से बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।